Hello student, how are you? Fine. Today we will discuss modification of root. Generally, the function of root is fixation of plant and absorption of water and minerals. But root in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for supporting storage of water and respiration, etc. These are as follows. Basically, modification of root is two types. The first is modification of taproot and second is modification of adventitious roots. Okay. Modification of taproot also divide into two type: modification of food storage and modification for respiration. Okay, the first modification for food storage. It is various type. The first is fusiform, second is conical, third is naifiform, and fourth is tuberous. First, fusiform root. These are thicker in middle and tapered both end upper and lower. Okay, in this type of root, both hypocotyl and root help in storage of water. Okay स्टूडेंट, इस टाइप का जो रूट होता है उसमें अपर एंड लोअर जो पार्ट होता है वो टेपर्ड होता है एंड मिडिल पार्ट बिकम थिकर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, occur in Radix raphanus sativum. Okay, next is conical root. These root thicker at the upper part and tapering the lower part, so this structure become conical shape. Okay, occur in Caryodoxus carota. And third is naifiform structure is picture like structure. These are become swollen and spherical in shape at upper end and taper in thread like structure at lower end. In this type of root, hypocotyl is edible part which is swollen due to deposition of food. Okay, occur in turnip, Brassica rapa. Next, tuberous root. Such type of root do not have a regular shape. Okay, due to deposition or storage of food. It is occur in Mirabilis. Next, most important modification for respiration. Okay, modification of respiration. Some plant grow in oxygen deficient marshy area known as halophyte. Okay, known as halophyte. Or mangrove vegetation. The branch of taproot, these plants grow vertically and come out soil, that is known as respiratory root or pneumatophore. This type root have small pores on surface which is help in gas exchange, oxygen intake and carbon dioxide release. स्टूडेंट, इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है वो ऐसे प्लेसेस के प्लांट्स में पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और ऑक्सीजन की जहां डेफिशिएंसी होती है, दोज प्लेस
आर नोन एज स्वैम्पी और वेजिटेशन नोन एज मैंग्रोव वेजिटेशन। वो वेजिटेशन मैंग्रोव वेजिटेशन कहलाती है। ओके, वहाँ पर उन प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, उन रूट से कुछ आउट ग्रोथ प्रोट्यूबरेंस बाहर निकलते हैं और उन स्ट्रक्चर पर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जो यूजुअली कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, और इन पोर्स के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। वाई, ये क्यों? क्योंकि रूट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी होती है एटीपी के रूप में जो होती है, ये हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी, और ऑक्सीजन यहाँ पर डेफिशिएंट है, सो प्लांट वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होती है। सो प्रोट्यूबरेंस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज नॉन एज न्यूमेटोफोर्स। यहाँ पर ये न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, आउट ग्रोथ के रूप में बाहर निकल आते हैं, और इन पर छोटे छोटे ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ऑलवेज कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, और इनके द्वारा क्या हो जाता है, गैस एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। जैसा कि आप जानते हैं एडवेंटियस रूट, ओके, सच टाइप रूट arise any part of plant then radical known as adventitious root। adventitious root में जो मॉडिफिकेशन होता है बेसिकली 3 टाइप से होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन फॉर वाइटल फंक्शन। ओके, द फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। ओके, इसमें फर्स्ट ट्यूबरकुलेटेड रूट। ओके, सच टाइप ऑफ रूट अराइज एट द नोड ऑफ प्रोस्टेट स्टेम एंड swell ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। प्रोस्टेट जो स्टेम होता है उसके नोड से इस टाइप की जो रूट होती है वो ऑरिजिनेट होती है, और फूड स्टोरेज कर वो कैसी हो जाती है, बिकम थिकर, स्वेल, फूल जाती है, जिससे कि इसकी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे कि डायग्राम में देखें। ये देखिए बेटा, ओके, occur in sweet potato Icomia butatus, and next fasciculated root. Such type root arise from at the node of basal part of stem in cluster और बंच। ओके, इस टाइप की जो रूट होती हैं वो क्लस्टर या बंच में क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। कहाँ पर, जो स्टेम होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ नोड से क्या होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, एंड फूड स्टोरेज कर कैसी हो जाती हैं, ये फूल जाती हैं, और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, फैसिकुलेटेड रूट कहलाती है। ओके, ये फैसिकुलेटेड, tuberculated, fasciculated. Next, nodulated. Such type of root, in such type of root, the end part or apex part of root become
thicker swell due to storage of food. It is occur in Curcuma amara. बेटा इस प्रकार की, इस टाइप की जो रूट होती है उसमें रूट के जो एंड पार्ट यानी कि जो अपेक्स पार्ट होता है वो फूड स्टोरेज का फूल जाता है और फूलने से उसकी नोडुलेटेड टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जनरली आंबा हल्दी होती है जो कि एक पेन किलर होती है। हमारे चोट लगने पर दूध में उसको पाउडर को मिलाकर गर्म करके पीने से हमें रिलैक्स महसूस होता है। ये इस टाइप की होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट bearded या monly form. In this type root, various places become swell due to deposition of food in regular interval, right? इसके अंदर जगह जगह पर फूड स्टोरेज होने से ये फूल जाती है और कुछ अंतरालों पर, कुछ इंटरवल पर, प्लेसेस पर कैसा होता है, डिपोजिशन नहीं होने के कारण ये एक बियर्डेड अर्थात माला के आकार की दिखाई देती है। इस प्रकार की जो रूट होती है वो ममोर्डिका, बिटरगार्ड, ग्रेप्स, वेटिस में, पोर्चुला का एटसेट्रा में होती है। ओके, नेक्स्ट एन्युलेटेड, ये किस में होता है? सच टाइप ऑफ रूट डिपोजिशन ऑफ फूड स्टोरेज इन रिंग, वेरियस जो रिंग होते हैं रिंग में कैसे हो जाते हैं, इसका डिपोजिशन होने से वह रूट कैसे दिखाई देती है? एन्युलेटेड टाइप की दिखाई देती है। अकर इन साइक्रोसिया, साइक्रोसिया एंड इपेके। ओके, नेक्स्ट most important modification for mechanical function. Generally, root absorption of water and minerals, but adventitious root provide mechanical support. Okay, so first of all, prop root and pillar root occur in banyan plant Ficus bengalensis. Ficus bengalensis में क्या होता है बेटा, जो उसकी ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेज से कुछ साइंड्रिकल ब्रांचेज क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं एंड ग्रो डाउनवर्ड टू सॉइल, और वो मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं और उसमें सॉइल में एंटर कर इसे क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ओके, ये देखिए बेटा, सिलेंड्रिकल ब्रांचेज हैं एंड ग्रो डाउनवर्ड टू सॉइल एंड क्या करती हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, सच टाइप रूट अकर इन सुगर केन, जिया मेज एंड अदर इन मोनोकॉट प्लांट। Lower part of sugarcane stem and other at the node, various fibrillar root arise and grow downward to soil and provide support.
देखिए बेटा, इसके जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से रूट होती हैं, और लोअर जो स्टेम होता है वहाँ पर जो नोड होती हैं, उन नोड पर कुछ स्पेशल डॉट लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन रिंग, और उन रिंग से में स्पेशल सेल्स होती हैं, वहाँ से कुछ फाइब्रिलर रूट्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, अराइज एंड ग्रो डाउनवर्ड टू सॉइल, नीचे की ओर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, और ये इसे क्या करती हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड नेक्स्ट, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग सब वर्ड जैसे ही आता है हमें जो कि माउंटेनियर जो हो उनको याद आती है कि वो लोग जब माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, और सहारे के लिए रोप जो कि रस्सी है उसको वो उस पर डाल के और उससे को पकड़ के और ऊपर की तरफ क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं। लाइक इज, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वीक स्टेम होते हैं और वो प्लांट बिल्कुल इरेक्ट सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। उन प्लांट को क्या है, हमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो किसी मजबूत जो बेस होता है उसके सहारे क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। किसके द्वारा, इन प्लांट के जो स्टेम होते हैं, स्टेम नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होता है, तो इनकी जो नोड होती है वहाँ से छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, और उनके जो पॉइंट होते हैं, जो एपेक्स पार्ट होता है, वहाँ से मिसोलिशियस एक लिक्विड सीक्रेट होते हैं जो कि कैसा होता है, चिपचिपा होता है। वो उस रूट को उस बेस से क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, और वो प्लांट उसके चारों ओर क्या करता है, ग्रो करता हुआ, क्लाइंबिंग करता हुआ ऊपर की ओर क्या कर देता है, ग्रो टुवर्ड अपर साइड। ये इसका बेस है और इसके चारों ओर दिस स्टेम डिवाइड नोड एंड इंटरनोड, ये इंटर नोड नोड इज नोड, ओके। लीव्स और बेटे ये जो नोड हैं यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे रूट क्या होते हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और इन रूट से के जो एपेक्स पार्ट जो कि यहाँ से कुछ मिसोलिशियस लिक्विड सीक्रेट होता है जो इससे चिपका देता है, और ये इससे क्या होती हैं, ऊपर की ओर ग्रोथ करती रहती हैं। नेक्स्ट, ब्यूट्रस रूट। ब्यूट्रस रूट कुछ बड़े जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट में देखे होंगे बड़े बड़े ट्री होते हैं, उनकी जो रूट होती हैं वो बहुत डेप्थ में ग्रोथ नहीं करके हॉरिजॉन्टली उसके क्या करती है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती हैं। दीज रूट, स्टेम एंड रूट का मिक्स फॉर्म होता है, अकर इन टर्मिनेलिया एंड सेमल। टर्मिनेलिया, ओके। देखिए ये प्लांट, इसकी जो रूट होती है वो इसके हॉरिजॉन्टली, बहुत डेप्थ में नहीं जाती हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती हैं। इस प्रकार से, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन फॉर वाइटल फंक्शन। एडवेंटियस रूट का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और इसमें
वेरियस टाइप मॉडिफिकेशन होता है। द फर्स्ट इज एसिमिलिटरी और फोटोसिंथेटिक रूट। व्हाट डू यू मीन एसिमिलिटरी एंड फोटोसिंथेटिक रूट? जनरली lack of chloroplast in root. रूट में सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, बट इन सम केसेस इन सम प्लांट रूट हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक इज टीनोस्पोरा एंड ट्रापा। उन रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट जिसमें भी प्रेजेंट होता है, किसके काम आता है? इन फोटोसिंथेसिस। सो इन प्लांट के अंदर ये रूट क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस कर और फूड फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो मीन्स सच टाइप ऑफ रूट विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर इनटू एयर। एयर के अंदर से क्या करती हैं? मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब करती हैं रूट, दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक रूट। ये जो प्लांट इस टाइप की रूट रखते हैं, नॉन एज एपिफाइटिक प्लांट, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर अपने सर्वाइव करते हैं, बट उससे किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन और हेल्प नहीं लेते हैं। इन प्लांट की जो रूट होती हैं वो एरियल रूट होती हैं, जो हवा में क्या होती हैं? लटकी हुई होती हैं। और इनके एक स्पेशल करैक्टर होता है कि इनके कॉर्टेक्स में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। वेलामेन टिश्यू इज ए स्पंज लाइक टिश्यू विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर इनटू एयर। एयर से क्या करते हैं? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को ये जो वाटर है ये फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा में क्या हो जाता है? यूज होता है। अकर इन ऑर्किड्स एंड वांडा। ओके, नेक्स्ट, पैरासाइट रूट। इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है पैरासाइट। व्हाट डू मीन पैरासाइट? सच टाइप ऑफ प्लांट विच डिपेंड ऑन होस्ट पार्शियली और कंप्लीटली। ऐसे प्लांट जो क्या है? दूसरे प्लांट पर, जो होस्ट प्लांट होता है उस पर या तो पार्शियली या कंप्लीटली क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं फॉर न्यूट्रिशन, नॉन एज क्या कहलाएंगे? पैरासाइट प्लांट। और उनकी जो रूट होती है वो पैरासाइट रूट होती है। इनकी कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं कि इनकी जो रूट होती है वो कैसी रूट होती है? वो शुगर रूट होती है या हास्टोरिया होते हैं। क्या करते हैं? एंटर इन टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट, और वहाँ से वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और इस प्लांट को क्या करते हैं? उस न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। अकर इन कस्कूटा, विस्कम, ओरोबैंकी। व्हाट इज कस्कूटा? बेटा इसको अमरबेल कहते हैं और आप देखते भी हैं। कौन से प्लांट पर? जुजुपास, जुजुबा प्लांट होता है। वायर ऑफ टेलीफोन के जो वायर होते हैं उन पर भी थ्रेड लाइक येलो स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, आप देखते हैं, वही क्या होती है? कस्कूटा होती हैं। इट इज ये कंप्लीटली क्या होता है? पैरासाइट। नेक्स्ट, फ्लोटिंग रूट। बेसिकली रूट क्या होती है बेटा? अंडरग्राउंड पार्ट होता है इन सॉइल के अंदर भूमिगत भाग होता है। बट इन सम प्लांट रूट आर फ्लोटिंग। ओके, कुछ प्लांट के अंदर लाइक इज पिस्टिया, जूसिया एंड आइकोनिया एक्सेट्रा, इनके अंदर क्या होते हैं? फ्लोटिंग रूट होती है। और इन रूट के अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ओके, ड्यू टू एरेनकाइमा these root floating on water. Okay, देखिए पिस्टिया में बेटा यहाँ से ये रूट क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, और ये रूट में एरेनकाइमा प्रेजेंट होने के कारण से कैसे होती हैं? फ्लोटिंग होती हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट इट मीन्स ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। बट हम देखते हैं बेसिकली वेजिटेटिव बर्ड जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम होती हैं।
vegetative buds occur on stem, but in some cases like is dahlia, sweet potato, okay, occurs। और ये क्या करती हैं बेटा, ये एक नए प्लांट को डेवलप कर देती हैं। नेक्स्ट, फोलियर और लीफ रूट, ओके। बेसिकली रूट occur lower part of plant, but in some cases like is in bryophyllum, the marginal part of leaf पर क्या होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड होकर वेजिटेटिव बर्ड्स एंड एडवेंटियस बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स एंड एडवेंटियस क्या होती हैं, रूट डेवलप करती हैं। और इस पार्ट को अगर काट कर हम लगा दें तो एक नए प्लांट में क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। बेटे, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट आज आप डिटेल में डिस्कस किए हैं एंड इट्स फंक्शन। किसके? फंक्शन ऑफ रूट। रूट के क्या क्या फंक्शन है? नंबर फर्स्ट, फंक्शन ऑफ रूट। द फर्स्ट, क्या फंक्शन हो सकता है? हमने कम डिटेल में स्टडी किया है, तो वन बाय वन इस चीज को, फिक्सेशन ऑफ प्लांट। प्लांट को क्या करता है? फिक्स करता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एंड थर्ड क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड नेक्स्ट, फूड स्टोरेज। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एटसेट्रा, ये इसके फंक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Peace.